اس کے بڑے پیٹ میں سانپ دوڑ رہے تھے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا تھا اور وہ بڑے بڑے انگارے اپنے منہ میں بھر رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جرائم سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی شب 2 تحفے عطا کیے۔ ایک تحفہ وہ ہے کہ جو جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں، اور وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ہمیں یہ دونوں آخری آیات حفظ کرنی چاہیے۔ پورا قرآن مجید زمین پر نازل ہوا سوائے سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب آسمان پر دی گئی، اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ دوسرا تحفہ وہ ہے نماز، جو کہ معراج کی شب آپ کو عطا کی گئی، یعنی 5 وقتہ نماز۔ آپ کو پہلے 50 نمازیں دی گئی امت کے لیے۔ آپ جب وہ نمازوں کا حکم لے کر نیچے آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا تحفہ دیا ہے؟ کہا کہ 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت پر یہ حکم بھاری ہوگا، آپ جا کر اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ اس میں کمی کی جائے۔ آپ دوبارہ اللہ کے پاس گئے، جبریل امین نے کہا کہ آپ دوبارہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں میں کچھ کمی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ دوبارہ جب گزرے، انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 40 نمازیں بھی آپ کی امت پر بہت بھاری ہوں گی، اور کم کرائیے۔ یوں کم کراتے کراتے آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی بھاری ہوں گی، اور کم کرائیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے آر محسوس ہوتا ہے کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس پورے سفر کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا۔ صبح کے وقت جب آپ نے اس واقعے کا ذکر اہل مکہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کچھ آپ سے سوالات پوچھے۔ آپ نے بتایا کہ میں نے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا ہے، اور وہ قافلے کے آگے یہ اونٹ چل رہا ہے، وہ قافلہ اتنے دن میں مکے پہنچے گا، اور یہ بات آپ کی بعد میں درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ تفاصیل پوچھی۔ اللہ نے وہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی، اور آپ نے اس عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ پھر اس موقع پر بعض لوگوں کو ایک ایسی امید ہوئی کہ شاید ہم کچھ لوگوں کو دین حق سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مشرکین گئے، اور ان سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے آج رات میں سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر میں 7 آسمانوں پر بھی گیا ہوں، اور میں واپس آیا ہوں ایک ہی رات میں، وقت کوئی نہیں گزرا، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو ناقابل یقین ہے۔ کہا کہ تمہارے صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے لیے ممکن ہے، میں ان کی نبوت رسالت پر ایمان لا چکا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سعادت دے سکتا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، آج ہم واقعہ معراج سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید تفصیل ہم پڑھیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ محترم ناظرین، آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں معراج کے واقعے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب آپ نے اس واقعے کا ذکر اہل مکہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کچھ آپ سے سوالات پوچھے۔ آپ نے بتایا کہ میں نے راستے میں ایک قافلے کو دیکھا ہے، اور وہ قافلے کے آگے یہ اونٹ چل رہا ہے، وہ قافلہ اتنے دن میں مکے پہنچے گا، اور یہ بات آپ کی بعد میں درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ تفاصیل پوچھی۔ اللہ نے وہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی، اور آپ نے اس عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ پھر اس موقع پر بعض لوگوں کو ایک ایسی امید ہوئی کہ شاید ہم کچھ لوگوں کو
दीन हक से गश्त कर सकते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ मुशरिकीन गए और उनसे कहा कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने आज रात में सफ़र किया है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर मैं सातों आसमानों पर भी गया हूँ और मैं वापस आया हूँ एक ही रात में, वक्त कोई नहीं गुजरा, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो नाकाबिल यकीन है। कहा कि तुम्हारे साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके लिए मुमकिन है, मैं उनकी नबूवत रिसालत पर ईमान ला चुका हूँ और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ये सादत दे सकता है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, हमने वाक़े मेराज की तफासील समझी। अब आइए ज़रा कुरान मजीद में इस वाक़े का ज़िक्र जो आया है हम उन आयात को समझते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में वाक़े मेराज का वो हिस्सा बयान किया, सफ़र मेराज का जो ज़मीनी है। इरशाद बारी ताला है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। असलूब बयान वाज़े कर रहा है कि ये सफ़र महज रूहानी नहीं था बल्कि ये सफ़र जिस्मानी था। इसीलिए इसे बड़ी शान के साथ बयान किया जा रहा है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यहाँ पर लफ्ज़ आया है, फ़ेल आया है असरा, असरा बिअब्दिही। कुरान मजीद में ये फ़ेल बाकी और मुकामात पर भी है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्तिम मिनल लैल। वहाँ पर भी ज़ाहिर बात है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म ये था कि अपने पूरे घर वालों को लेकर रात में निकलो, और ज़ाहिर बात है कि पूरे घर वाले जिस्मानी तौर पर निकले हैं ना कि महज रूहानी तौर पर। फिर एक सवाल पैदा होता है कि वाक़या मेराज का ताल्लुक तो उरूज से था, यानी ऊपर जाना, तो आखिर इस सफ़र में क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह के रसूल को कोई ज़मीनी हिस्सा भी तय कराया गया और आपको मस्जिद अक्सा भी ले जाया गया? इसकी हिकमत असल में यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनी सफ़र के ज़रिए से ये बात वाज़े कर दी कि अब दोनों किबलों के मुतवल्ली अल्लाह के रसूल और उनके उम्मती हैं। बनी इसराइल जो कि पहले मस्जिद अक्सा वाले किबले की मुतवल्ली थी, उसको इस एजाज़ से महरूम कर दिया गया और ये एजाज़ दिया गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को। मज़ीद ये कि वहाँ पर तमाम अम्बिया और अम्बिया बनी इसराइल की नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत, ये भी इस बात का सबूत था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल के तमाम अम्बिया ने भी इमाम और सरदार तस्लीम किया है। लिहाजा उन सब का आपके पीछे नमाज पढ़ना, आपको सरदार इमाम तस्लीम करना, ये इस बात का सबूत है कि अब बनी इसराइल के लिए भी असल इमाम और असल सरदार वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसलिए कि बाज़ हज़रात उनकी ये राय है कि सूरह मायदा में चूँकि अल्लाह ने फरमाया है कि अर्ज़ मुक़द्दस बनी इसराइल के लिए लिख दी गई है, लिहाजा मस्जिद अक्सा पर उन्हीं का हक़ है। यह हक़ उनका था, लेकिन अब यह हक़ नहीं है। अब दोनों किबलों के मुतवल्ली मुसलमान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक्सा के जिसके गिरदा गिर्द को हमने बरकत दी थी, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अल्लाह अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निशानियों में से कुछ दिखाए। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला तो सब कुछ सुनने वाला है और सब कुछ देखने वाला है, लेकिन बंदे चूंकि सब कुछ नहीं देख सकते, सब कुछ नहीं सुन सकते, इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजाज़ बख्शा कि वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से कुछ देखें। सूरह नजम में सफ़र मेराज का आसमानी हिस्सा बयान हुआ। इरशाद बारी ताला है वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जबकि वो
डूब जाए, गोया सुबह शुरू हो रही है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ए लोगों जो तुम्हारे साथी मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो वो सीधी राह से हटे हैं और ना ही माज़ल्ला उन्हें किसी किस्म का कोई जुनून लाहक हुआ है। वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स से तो कुछ भी नहीं कहते। इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, जो कुछ कहते हैं वो नहीं है मगर वो जो उनकी तरफ वही किया जाता है। यानी वो जो कुछ बयान करते हैं वो सब का सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही शुदा होता है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, उनको ये पूरी की पूरी वही और उसकी तालीमात एक ऐसी हस्ती ने सिखाई हैं। ज़ू मिर्रा, वो हस्ती जो बड़ी ताकत वाली है। फस्तवा, अब एक मंजर बयान हो रहा है जबकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी असल मलाकुती शक्ल में देखा था, जबकि एक मरतबा वो गारे हिरा से निकले थे और उन पर सूरह मुदस्सिर की आयत की तिलावत हुई थी। ज़ू मिर्रा, बड़ी कुव्वत वाले हैं। फस्तवा, एक वक्त वो आया कि अल्लाह के रसूल ने मंजर देखा कि वो बिल्कुल सीधे हुए। वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, और वो बुलंद उफ़क़ पर थे। सुम्मा दना फतदल्ला, और फिर वो करीब आए, बिल्कुल लटक गए। फ़काना काबा कौसैन औ अदना, और फिर उनके और हज़रत मोहम्मद के दरमियान फासला रह गया 2 कमानों, बल्कि उससे भी कम का, यानी बहुत ही अल्लाह के रसूल के करीब आ गए। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और उन्होंने अल्लाह के बंदे की तरफ वो कुछ वही किया जो कुछ के वही किया। सूरह तकवीर में भी इसका जिक्र आता है कि अल्लाह के रसूल ने उफ़क़ मुबीन पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा था। यही वाक़या यहाँ भी बयान हो रहा है। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, जो कुछ देखा आँख ने, दिल ने उसको झुटलाया नहीं। यानी दिल ने गवाही दी कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई वहम नहीं है, बल्कि जो कुछ आँख ने देखा दिल ने उसकी तस्दीक की। गोया आपने दिल और आँखों को यकसुई के साथ देखा जो कुछ के देखा। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, ए मक्के वालों, क्या तुम हज़रत मोहम्मद से झगड़ा करते हो उन चीज़ों के बारे में जो कि उन्होंने अपनी आँख से देखी हैं। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, अरे वो तो उनको एक और बार भी देख चुके हैं। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास। ये है मिराज का आसमानी सफ़र कि जब सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन रुक गए थे, वहाँ दोबारा आपने उनको असल शक्ल में देखा था। इंदहा जन्नतुल मावा, वो सिदरतुल मुंतहा वो इंतहाई बेरी वो है कि जिसके पास वो हमेशा हमेश रहने वाली जन्नत है। इस यख्शा सिदरत मा यख्शा, जबकि बेरी पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। क्या छा रहा था अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं समझ सकते। इसलिए अंदाज ये है कि बेरी पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, और ना आँख कज हुई, टेढ़ी हुई, और ना हद से बड़ी। जो कुछ देखा भरपूर अंदाज से देखा, ना आँख चुंधियाई और ना ही आँख हद से आगे बढ़ी। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, और उन्होंने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों को देखा। यह है अजीम वाक़या बेराज। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार अता फरमाए, और जो भी उनकी अज़मतें हैं अल्लाह ताला उनका नक्श हमारे दिलों पर कायम फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।